Good evening to all the students. Today in this lecture you will learn about the Young's double slit experiment and what will be the expression of the intensity on the screen due to this interference. Okay, so we derive that expression and we talk about the intensity of the point where the constructive interference takes place and intensity of the point where the destructive interference takes place. Okay, so that is the motive of our today's lecture. In the previous class we learn about the what is interference and how this interference takes place. Clear? There are some certain essential conditions under which the two light sources or more light sources produces the interference fringes. And what is the fringes? It is just the arrangement of alternative bright dark, okay, pattern of the intensity, that is a redistribution of intensity, and this is called the interference fringes. So in this interference, the essential condition is what? The wave should have the same frequency, amplitude should be nearly equal or exactly equal. The phase difference, the main condition is the phase difference between the interfering waves must be constant with the time. Okay, phase difference must be constant with the time, and the fourth one propagating in the same direction. So when they superpose, then intensity redistributed and we get the alternative bright dark pattern on the screen, and that is called the interference fringes, and the phenomena is called the interference. Okay, so in the Young's double slit experiment, which is also named YDSE, in short it is also named YDSE, Young proved the fringes experimentally first time. Okay, that yes, we can produce such kind of fringes on the screen with the help of two slits. Okay, why we are taking two slits? Okay, because the sources or the waves which are emitting by the light source, that waves should be coherent with each other. This is the condition. And what is the meaning of coherency? The coherent waves means the waves having same phase difference with the time, yeah, constant phase difference with the time, that is called the constant coherent waves. So here in this Young's double slit experiment, we take a single light source, which is the extended one, and monochromatic. What is the meaning of monochromatic? Mono means single and chrome means related to color. Okay, so the source which emit only single color light, okay, or a single wavelength, that is like a sodium lamp we generally use for this interference pattern when we want to experiment with the monochromatic light source. Then sodium lamp is having the wavelength 5893 on the average. There are also two lines, D lines they are called, 5890 angstrom and 5896 angstrom. So uska average I am saying that 5893 angstrom. So it is we consider that since the difference is 6 angstrom and that is very small, so we can assume that this sodium lamp is a monochromatic light source. Okay, means it is only emitting a single wavelength. Clear? Or this wavelength lies in the range of yellow color. तो उसकी जो लाइट की कलर है लाइट का सोडियम लैम्प का, दैट इज अ येलो कलर. सो जनरली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड, सो इस ऑप्टिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो हियर वी आर यूजिंग दिस सोडियम लैम्प एंड ऑल्सो इट इज एक्सटेंडेड वन, ताकि जो फील्ड ऑफ व्यू है वहाँ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली हम देख पाए. तो इसको एक्सटेंडेड सोर्स लिया जाता है, दैट इज नॉट द पॉइंट सोर्स, बट वी यूज अ स्लिट हियर. दिस S is the slit, या दिस वन इज द स्लिट. और कल मैंने बताया था स्लिट एक स्ट्रिप होती है जो हम एक कार्डबोर्ड या हमने मान लो एक बॉक्स बनाया है वुडन, उस बॉक्स पर हम एक बहुत सी पतली सी स्ट्रिप कट कर देते जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी और उसको हम एक स्लिट बोलते हैं. तो दैट स्लिट इज प्लेस्ड हियर लाइक परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. दिस इज प्लेस्ड. ये ऊपर से उसका व्यू लिया गया है, जो सेटअप होगा उसका, उसको हमने अप डायरेक्शन से उसको देखा है. तो स्लिट जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर.
अब जो स्लिट होती है उसको हम लाइन सोर्स कंसिडर करते हैं ना, और लाइन सोर्स से इमिट होने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा. सो हियर द वेव फ्रंट इमिटेड बाय दिस स्लिट इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. ओके, WF मैंने लिखा है, दिस इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. ये स्लिट्स S1 S2 फिर इसकी डबल स्लिट इसके पाथ में लगाई जाती है. एक्चुअल में हियर वी आर producing the coherent sources by the method of separation or division of wavefront. There are two methods by which we can produce the coherent sources. The first one is called the wavefront division and second one is called the amplitude division. Means if we divide the wavefront of the single light source into equal parts, then it is called, or nearly equal parts, then it is called the wavefront division. Okay, and this is done because two independent light sources never emit the light waves which are coherent to each other. क्योंकि उन दोनों में जो एटम्स का डी एक्साइटेशन है, लाइट इमिट किस लिए होती है, एटम के डी एक्साइट होने के कारण. तो एटम का जो डी एक्साइटेशन है वो रैंडम नेचर का होता है, उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि इस टाइम में इतने एटम डी एक्साइट होंगे और उससे लाइट रेडिएशंस इमिट होगी. सो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते, और इसलिए हम एक ही लाइट सोर्स के दो पार्ट करके या एक ही वेव के दो पार्ट्स करके हम उसको कोहेरेंट सोर्सेज को डिजाइन करते हैं. तो यहाँ फर्स्ट मेथड हम यूज लेते हैं जिसमें हम वेव फ्रंट को, देखो हमने डिवाइड किया है, ये एक सिंगल वेव फ्रंट था और इसको ये फर्स्ट वेव फ्रंट और ये सेकेंड वेव फ्रंट तो इससे निकल रहा, और ये सारे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से. ठीक है, इन सबको तीनों को हम क्या कहेंगे, दे आर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. ये स्लिट्स जो है वो इसके लिए लगाया गया है. दिस इज द स्लिट S1 एंड S2, दिस इज द स्क्रीन एंड हियर इट इज द सोर्स. यहाँ इसको मैं सोर्स कह देता हूँ. दिस इज द पोजीशन ऑफ सोर्स, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्लिट्स एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन. क्लियर? नाउ these two slits S1 and S2 are taken here, and these two behave like two coherent sources which will emit the coherent waves in the forward direction, and also according to the Huygens principle each point of the slit S1 and S2 behave like a new fresh light of source, that is secondary source we can say. And the waves emitted by the secondary source is called the wavelets. इनको हम wavelets कहते हैं. जो S1 से जो waves emit होंगी और S2 से जो wave emit होंगी इनको हम wavelets कह सकते हैं. और हर point इसका स्लिट S1 का और स्लिट S2 का ये खुद एक point source की तरह behave करता है, हर point. क्लियर? और एक्चुअल में इनकी जो width होती है वो भी बहुत स्मॉल लेते हैं. क्लियर? स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉल ली जाती है. स्लिट का जो सेपरेशन है जिसको हम स्मॉल डी कह रहे हैं ये भी स्मॉल होता है. इसका ऑर्डर लगभग 2 mm मैंने लिखा है. इट इज हैविंग द ऑर्डर 2 mm. सो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स S1 S2 d स्मॉल d इट इज 2 mm नियरली इक्वल, एंड इट वाज टेकन बाय द यंग. एंड विड्थ ऑफ ईच स्लिट, यानी S1 की विड्थ क्या है, S2 की विड्थ क्या है, ये विड्थ जो है ये 0.3 mm है ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है 0.3 mm. सो ऑलमोस्ट ये लाइन सोर्स हम इसको कह सकते हैं. 1 mm की तुम्हारी स्केल का लीस्ट काउंट होता है जो जनरल हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो यूज लेते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं 1 mm उसका भी 0.3 टाइम्स. तो दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड ऑलमोस्ट इट इज अ लाइन सोर्स. क्लियर? सो लाइन सोर्स विल emit the cylindrical wave fronts. That is the purpose. And similarly this separation is large and it is having the value up to order 2 meter. ये इसकी वैल्यू 2 मीटर के आसपास होती है और ये 2 mm होता है. डायग्राम में भी लिख सकते हो ताकि हमें याद रहे, डायग्राम की पिक्चर जनरली माइंड में रहती है. तो 2 mm 2 मीटर एंड 0.3 millimeter. Okay, mm means millimeter. And here it is the screen, and this screen shows the interference pattern by these two interfering waves. They will superpose on each other and they will show the interference pattern on this screen. So this was the setup which is designed by the Young and first experimentally demonstrated the interference between the two light sources or two coherent sources.
Okay, so we introduce first about this Young's double slit experiment, and then we will continue that on the screen at any point what will be the intensity and what will be the intensity of constructive, where the constructive interference will take place, and for similarly for the destructive interference we will talk about. So write down here the interference phenomena was experimentally demonstrated by Young as shown, या ऐसे लिख लो, the setup is, या setup was as shown in figure. Okay, the setup was as shown in figure. So a monochromatic okay, it means single color or frequency, single color or frequency, and extended light source, extended light source S placed in front of a slit, the wave front को मैं शॉर्ट में WF से लिख रहा हूं. ओके, the wave front emitted by S, which is कैसा है, वो सिलेंड्रिकल है. स्लिट्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को इमिट करती है, सिलेंड्रिकल. सो द वेव फ्रंट इमिटेड बाय एस, सिलेंड्रिकल, divided into two parts by double slits S1 and S2. इसलिए इसके नेम में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. ये डबल स्लिट कौन सी है, S1 एंड S2 है, जिसको हम डबल स्लिट कह रहे हैं. ओके, सो इट इज डबल स्लिट S1 एंड S2 बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज. ये दोनों क्या कैसे बिहेव करती है, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करती, बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज. The screen placed at distance 2 meter, nearly 2 meter from slits, and slits are separated by nearly 2 mm distance. So these two distances are important actually. स्लिट विड्थ इतनी काम नहीं आती, 0.3 मैंने वैसे बता दिया है, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें कहीं डेरिवेशन में यूज नहीं लेना. एक तो स्मॉल डी यूज आएगा और एक कैपिटल टी यूज आएगा. व्हेन वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, when we will derive the expression for the fringe width, then we use this small d, capital D, and the wavelength lambda of this light source. Okay, that is the lambda से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो इस लाइट सोर्स की ये वेवलेंथ है. तो जो फ्रिंज विड्थ हम डिराइव करेंगे उसमें हम लैम्बडा डी और कैपिटल डी को यूज लेंगे, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी को. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. On screen we get interference fringes. अब फ्रिंजेस क्या होती है ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं. as shown,
ठीक है, ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क जो इंटेंसिटीज का पैटर्न है दैट इज कॉल्ड द फ्रिंजेस. क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट. Expression of intensity, expression of intensity on the screen. ठीक है, स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी है लाइट की उसका हम एक्सप्रेशन यहाँ पर डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल we will consider two equation of the wave y1 and y2, then we will add them. Y1 plus y2 will be the equation of the resultant wave, and we solve them and find the almost same expression as we take for y1 y2 for the resultant wave y, and then we find the intensity in terms of amplitude. There is a relation between the amplitude and intensity, and that relation is intensity is always directly proportional to the amplitude of the resultant wave. Okay, like if I say capital A is the amplitude of resultant wave, then I is proportional to capital A square. Okay, and it is equals to k a square, where k is the proportionality constant. So that expression we use here to find out the intensity from the amplitude of the resultant wave. So here it is a first derivation of this chapter, an important one. Okay, there are only 2 or 3 derivations in this chapter. So let us take the equations of two coherent waves emitted from slits S1 and S2. Okay, we are talking about the Young's double slit experiment. Okay, this is the part of that that was a diagrams introduction, and now we are doing the derivation done by the Young for the intensity distribution or intensity of the light on the screen. Clear? So as let us take the equations of two coherent waves as y1 equals to a1 sin omega t and y2 equals to a2 sin omega t plus phi. Okay, so here look, conditions which we describe in the definition of interference we are following here. So a1 a2 are the amplitudes of these two waves y1 and y2. Omega is the angular frequency and it is same. Okay, omega is same for this both the waves. T is the instant where we are writing this displacement y1 and y2. So time है ये, time दोनों के लिए same चलेगा. Phi is the phase difference. ओके, अगर मैं फेज एंगल्स का डिफरेंस लूं तो क्या होगा? इट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी विल कैंसिल आउट, सो फेज डिफरेंस विल बी फाई हियर, एंड दैट इज कांस्टेंट विद टाइम. ओके, यहाँ पर a1 a2 एंड फाई ऑल थ्री आर कांस्टेंट्स. ठीक है, ये तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे. क्लियर? और a1 जो है वो भी नियरली इक्वल है a2 के, और एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है. हम एक स्पेशल केस करेंगे जहां पर हम इन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल करेंगे. सो a1 एंड a2 आर नियरली इक्वल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ओमेगा इज सेम, सो दैट द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस. और हमने यहाँ पर दोनों को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है सपोज, तो दोनों में आई कैप आएगा, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, केवल हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स इमिटेड फ्रॉम सोर्सेज as below and traveling in same direction. ठीक है, डायरेक्शन की बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ. वैसे भी
डायग्राम में हमने बताया, देखो डायग्राम में दोनों ही वेव जो स्लिट से इमिट होती है S1 और S2 से, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलती है और वही वेव सुपरपोज होकर इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएगी। और हमने तो ये डिस्टेंस जो ली थी वो 2 mm की बहुत ज़्यादा ली थी डायग्राम में शो करने के लिए, बट एक्चुअल में 2 mm बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है ना। तुम्हें पता है 1 mm का गैप होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की स्केल का या मीटर स्केल का, तो उसका 2 डबल, उस एक जो लीस्ट काउंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की स्केल का, उसका जस्ट डबल, तो बहुत स्मॉल पोर्शन है ये, इसलिए वेव्स ये सुपरपोज करती हैं एक दूसरे से और इनके बीच का जो गैप है वो टाइम गैप सेपरेशन जो है वो कम रहता है और एक ही डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करती है। क्लियर? सो नाउ इन दिस सिचुएशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the resultant wave will be, ठीक है, इक्वेशन हम लिखेंगे उसकी, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर? अब देखो प्रोसीजर क्या है, हमें यहाँ पर इस इक्वेशन y की जो इक्वेशन है इसको भी इन्हीं फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू चेंज दिस इक्वेशन इन सच फॉर्मेट जहां पर एम्पलीट्यूड हो और साइन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट हो। ओके, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस साइन a प्लस बी को एक्सटेंड करेंगे, साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और उन जो वो दोनों कांस्टेंट होंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, वो a1 a2 और 5 की टर्म में होंगे, तो दे विल बी कांस्टेंट। सो अगर वो कांस्टेंट है तो उसको हम नए कांस्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वी कंसीडर सम न्यू कांस्टेंट देम। क्लियर? सो दैट वी कैन कन्वर्ट दैट इक्वेशन या दिस इक्वेशन लाइक दिस y1 एंड y2 इक्वेशन। क्लियर? सो लुक कैसे करना है, एक बार मैंने प्रोसीजर बताया, एक बार डेरिवेशन करने के बाद फिर बता दूंगा। हमेशा मैं बोलता हूं कि किसी भी प्रोसीजर डेरिवेशन के प्रोसीजर को याद रखो, स्टेप्स को याद रखो कि हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एज ए स्टोरी हम इसको याद कर सकते हैं, तो वो हमें याद रहेगा, बजाय कि हम केवल स्टेप्स को लर्न करें कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, उसके बजाय हम अगर उसका प्रोसीजर याद रखेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा उस डेरिवेशन को याद करने में, और प्लस जो गलतियां होती है जनरली बच्चे प्रोसीजर याद नहीं करके केवल उसके स्टेप्स को रट लेते हैं और रटने से वो कहीं इधर उधर मिक्स कर देते हैं या भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती उससे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, देखो कैसे, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, साइन ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट हमें अलग करना है, तो देखो क्या क्या होगा, वो एक तो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी इधर लिखूंगा, और एक देखो साइन ओमेगा टी यहाँ है, एक यहाँ है, तो a2 cos 5, तो इट इज a2 cos 5 एंड विद साइन ओमेगा टी। मैंने साइन ओमेगा टी उधर कॉमन लिया है, ऐसे समझ लो, तो इन दो टर्म में था ये, तो जो रिमेनिंग टर्म थी वो हमने यहां पर लिख ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a2 साइन 5, ये किसका कोफिशिएंट है, कॉस ओमेगा टी का। क्लियर? तो हमने तीन टर्म्स जो थी उन तीन टर्म्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट और कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, इसे हम एक न्यू कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसको भी एक नया कांस्टेंट मानेंगे, जिससे कि ये टर्म समथिंग लाइक a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा cos ओमेगा टी, तो a अगर कॉमन ले लोगे तो वापस यही फॉर्मूला बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो कैसे, इसको समझना, ये स्टेप थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि लेट, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना तीनों, इसीलिए हम एक नया कांस्टेंट यहाँ पर नाम दे सकते हैं। सो लेट दिस a1 प्लस a2 cos 5 इज a cos थीटा। इजी ऐसे याद रखने में कि जहां cos है वहां cos ही रहेगा, ठीक है, जिसमें cos आ रहा है वहां cos ही रहेगा।
कैपिटल ए हमें नहीं पता अभी क्या है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे आगे, और थीटा भी हमें नहीं पता, लेकिन हम इस a1 a2 और फाई की टर्म में a और थीटा को फाइंड कर सकते हैं। ओके, प्रोसीजर मैं आगे बताऊंगा। एंड दिस a2 sin फाई इज व्हाट, इट इज a sin थीटा। क्लियर? तो जिसमें देखो साइन है वहां पर साइन लेना है। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या इसको ले लेते चलो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. So we put these values in this equation. Now here look, if you want to find the A, what is capital A, then we can just square and add these two equations. Okay, इनको भी मैं नेम दे रहा हूँ 4 and 5. So squaring and adding we can get A, जो हम आगे यूज लेंगे, and by dividing them we can find theta. थीटा को भी हम डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं, तो a1 a2 और फाई की टर्म में हमें a और थीटा मिल जाएंगे। तो इस ऐसा करने से हुआ क्या, देखो आगे स्टेप में जब हम पुट करेंगे तो यूजिंग 4 and 5 in 3 implies क्या मिलेगा हमें, y is equals to a sin theta, y equals to a sin theta a cos थीटा, पहले cos आएगा ना यहाँ, तो इट इज a cos थीटा sin ओमेगा t। इसकी जगह क्या आ गया, a cos थीटा, और ये एज इट इज। तो हमने वो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट था उसको हमने न्यू नेम दे दिया, प्लस a sin थीटा एंड cos ओमेगा t। अब देखो अगर इस इक्वेशन में हम a कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमने जो कोहेरेंट वेव्स की इक्वेशन है उनको लिया था। क्लियर है? तो दिस y1 एंड y2 एंड y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन नंबर 6। और यहां पर ये a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। Here a is what? A is the amplitude of resultant wave. यहाँ लिख रहा हूं मैं a is amplitude of resultant wave. Clear? And this omega t plus theta is the phase angle for this resultant wave. Clear? So I hope, देखो ये मैंने ऐसे कंसिडर किए थे ताकि ये वापस वैसा ही फॉर्मेट बन जाए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिससे कि हम एम्पलीट्यूड कितना है रिजल्टेंट वेव का वो फाइंड कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस a को स्क्वायर करेंगे, a फाइंड करेंगे पहले इन दोनों से, 4 and 5 से a फाइंड करके उनका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और ऐड करके a स्क्वायर को प्रोपोर्शनल कर देंगे इंटेंसिटी के, तो हमें इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर? और फिर हम उसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कैलकुलेट कर लेंगे विद स्पेशल केस दैट इफ a1 इक्वल्स टू a2 देन व्हाट विल बी हैपन। क्लियर? सो फास्ट टेक द स्क्रीनशॉट। So we know the intensity of a wave is directly proportional to its amplitude. Okay, its amplitude, that is I is proportional to a square. In general I am writing the expression. Okay, so I is proportional to a square, or I is equals to ka square, where k is the proportionality constant. Okay, this is what it is, proportionality constant. So if I write the intensity of the first wave, second wave and resultant wave, then how we can write? So from equations 1, 2 and this 6,
intensities of first wave, second wave means जो इंसिडेंट वेव्स थी एंड रिजल्टेंट वेव आर क्या होगा इनका एक्सप्रेशन I1 इज KA1 स्क्वायर, क्योंकि देखो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड हमने A1 लिया था, सो इट विल बी KA1 स्क्वायर. सेकेंड I2 will be KA2 square and I will be K capital A square, क्योंकि इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर कैपिटल A है. One more thing which we use in our further derivation, that is root I1. अगर मैं यहाँ से root I1 फाइंड करूँ तो it will be under root K into A1. A1 स्क्वायर रूट में नहीं है. Similarly under root I2 will be what? It is under root of K into A2. So we will use this root I1 I2 in our further derivation, so I am writing this one. So in this expression we need A square. So how we find A square? By squaring and adding equation 4 and 5. Okay, squaring and adding equation 4 and 5. So to find A square, we are squaring and adding equations 4 and 5. This implies what we will get? A square cos square theta plus A square sin square theta is equals to A1 plus A2 cos phi whole square plus A2 sin phi whole square. यही होगा ना, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया है हमने. तो अगर यहाँ A स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो इट विल बी 1. Cos square plus sin square theta will be 1 by the identity, and here it will be what? A1 square plus 2A1 A2 cos phi, and next term will be A2 square cos square phi, and this last term will be A2 square sin square phi. And look here also, if you take this A2 square common, then this cos square phi plus sin square phi will again become 1. Clear? If we take A2 square common in this expression, so इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट हमने ऑलरेडी ले रखा है. So what is this A square? This is A1 square plus 2A1 A2. अब मैं इसको, ये जो टर्म आएगी ना, इसको पहले लिख रहा हूं. A2 square plus 2A1 A2 cos phi. Clear? A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. And here ये वैसा ही है जैसा हमने कोसाइन लॉ किया था. क्लियर? कोसाइन लॉ में हमने इसी तरह से लिखा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जो रिजल्टेंट वेव R का एक्सप्रेशन था, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखो K से, क्योंकि हमें KA स्क्वायर चाहिए. And let these all equations are equation number 7. ठीक है, जो भी कंटिन्यूएशन में इक्वेशन नंबर हो. ठीक है, 6 तक हमने ले लिया था, इट इज 7 लेट. सो इट विल बी व्हाट? मल्टीप्लाइंग विथ KA स्क्वायर, KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर. K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को, और यहां जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो देखो KA1 A2 कुछ नहीं होता, बट रूट KA1 और रूट KA2 रूट I1 I2 होगा. तो यहां जब हम K से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अंडर रूट KA1 और अंडर रूट KA2 cos phi एज इट इज. क्या देखो रूट K और रूट K वापस K बन जाएगा ना अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, और A1 A2 तो यहाँ पहले से है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट K रखे ताकि हम इसको रूट I1 रूट I2 की टर्म में लिख सके. हमें पूरा एक्सप्रेशन इंटेंसिटी वाइज ही चाहिए, हमें फिर A1 A2 नहीं चाहिए वहां पे. ओके, तो इस एक्सप्रेशन में यूजिंग 7, जो हमने ऊपर 7 इक्वेशन लिखी है, यूजिंग इक्वेशन 7
I will be equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, and this is the equation for intensity of resultant wave. Okay, I1 plus I2 plus 2 I1 I2 cos phi. Clear? This is the equation, and remember this equation forever कि ये इंटेंसिटी होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और इसी इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में जब हम इस फेज डिफरेंस फाई को, जो इंसिडेंट वेव इनिशियल जो हमने वेव्स ली थी y1 एंड y2, उनके फेज एंगल को लाइक कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा 2n पाई फेज एंगल, कल हमने डिस्कस किया था इसको प्रीवियस क्लास में, और डिस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा 2n प्लस 1 पाई। तो वो फेज वैल्यू रख के हम मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए बनती है वो कैलकुलेट करेंगे, और एक स्पेशल केस भी करेंगे कि अगर A1 A2 इक्वल है तो I1 I2 इक्वल होगा, तो उस सिचुएशन में ये एक्सप्रेशन मिनिमा और मैक्सिमा का क्या होगा। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Now we know I equals to I naught I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Okay, this is the equation for the resultant wave. Now we are doing two cases. The first one, case first for constructive interference. For constructive interference, and the second case we are taking case second for destructive interference. For destructive interference. Okay. As we know, in case of the constructive interference, what happens? The phase difference between the interfering waves will be 2n pi. ओके, कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब फेज डिफरेंस 2n पाई, जहाँ n एक इंटीग्रल नंबर है लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और पाई इज द 22/7 जैसा हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं। ओके, सो 2n पाई यहाँ पर फेज एंगल होगा, सॉरी 2n पाई में पाई का मीनिंग यहाँ 180 है, 2n पाई में पाई का मीनिंग 180 है। तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन, ये जब फेजेस होते हैं या ये जब फेज एंगल्स होते हैं, तब उस सिचुएशन में इंटरफेरेंस जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो वो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो अभी हम उसकी इंटेंसिटी वाइज हम बात कर रहे हैं, पोजीशन हम नेक्स्ट डेरिवेशन में करेंगे। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी नो the phase difference phi is what? It is 2n pi, where n start from 1 and so on. So cos phi will be what? इसमें फर्स्ट वैल्यू रख के देख लो, n को 0 रख दो, phi 0 हो जाएगा, phi 0 पे cos 0 क्या आएगा 1, तो it will be 1. ओके, cos 2 pi भी 1 होता है, cos 4 pi भी 1 होता है एंड सो ऑन, क्योंकि ये वैल्यूज रिपीट होती है आफ्टर 2 pi एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे 2 पाई एंगल के बाद में रिपीट होते हैं। सो ऑल द 2n पाई विल हैव द cos पाई इक्वल्स टू 1। सो I, which is maximum intensity, it will be what? It is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, और cos पाई क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, I max will be equals to under root I1 plus under root I2 whole square, लिख सकते हैं। So this is the maximum intensity on the screen for the fringe जहां constructive interference form होगा। This is the intensity of the maxima। अब यहाँ भी ये कंडीशन लगाते हैं कि if I1 equals to I2, और ये कब होगा? जब A1 A2 के इक्वल है, यानी इंटरफेरिंग वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली इक्वल है। हम जनरली नियरली इक्वल की बात करते हैं, बट हियर वी लेट इट इज एग्जैक्टली इक्वल।
So when this a1 equals to a2, then I1 equals to I2, because k a1 square is I1, k a2 square is I2. So put this value here. Let दोनों को I1 की टर्म में लिखूं तो I max क्या आएगा इस सिचुएशन में? It will be root I1 plus root I1 whole square, और 2 root I1 whole square. It will be 2 root I1 whole square and it becomes 4 I1. तो इंटेंसिटी जो है वो फर्स्ट वेव या इन ईच वेव की जो इंटेंसिटी है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि स्क्वायर होता है। ओके, तो 4 टाइम्स कैसे हो रही है? एम्पलीट्यूड डबल होगा। a1 प्लस a2 लिखेंगे ना एम्पलीट्यूड को, वो 2a हो जाएगा। क्लियर? तो a मैक्स जो होता है यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पर a1 प्लस a2, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इसी के प्रोपोर्शनल आ जाती है। आई मैक्स अगर हम करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी वाइज है। एम्पलीट्यूड वाइज अगर हम लिखें तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई मैक्स इक्वल्स टू k a max स्क्वायर, and it will be k a1 plus a2 whole square। तो ये एक्चुअली इसी एक्सप्रेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है जहां हम थीटा को वही वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर? तो k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट k i1 प्लस रूट k a2 और सो ऑन cos थीटा। तो वो चीज हम यहाँ पर थीटा 0 करके ले रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन इसी एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की टर्म में भी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ध्यान रखना, और इंटेंसिटी की टर्म में भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट चेंजेस? द फेज एंगल और द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग रेज। कितना हो जाएगा ये? 2n plus 1 pi। The phase angle will be what? It is 2n plus 1 pi. So कैसे लिखेंगे उसको? We know for destructive interference phi will be 2n plus 1 pi, and here also 1 starts from 0, 1, 2 and so on. ये वैल्यू लेता है। Now at these values of phi, the cos phi will be what? फर्स्ट वैल्यू रख के देख लो, n को 0 रखो तो क्या आएगा यहाँ पर? पाई आएगा। सो इट विल बी cos पाई इज व्हाट? इट इज -1। सिमिलरली cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, all value will have the negative value or it is equals to -1. So cos phi will be -1, and if we write I minimum, then I minimum will be what? इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इट विल बी नेगेटिव। और -1 हम अगर नेगेटिव में पुट कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, और ये हो जाएगा I minimum is equals to I1 माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द मिनिमम। ओके, now here also if I take I1 equals to I2, if I1 and I2 are equal, okay, और वो कब होंगे? when A1 equals to A2, then I minimum will be what? The I minimum will be directly 0, क्योंकि नेगेटिव है ना बीच में, तो दोनों को इक्वल करोगे तो इट विल बिकम 0। सो दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी। परफेक्ट डार्क मिलेगा, है ना। इसका मीनिंग क्या है? वी विल गेट परफेक्ट डार्क ऑन द स्क्रीन इफ द एम्पलीट्यूड्स हैव द एग्जैक्टली सेम वैल्यू। तो हम कोशिश यही करते हैं कि एम्पलीट्यूड जो वेव का है वो एग्जैक्टली सेम रहे, और एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली सेम होगा तो वहां हमें इसकी डार्क जो मिलेगा वो परफेक्ट डार्क होगा। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कीप द एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल।
So in this situation, if I write A minimum, then A minimum will be what? It is A1 minus A2. इसको हम क्या लिखेंगे? A1 minus A2. सब्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, यहाँ एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। यहाँ एडिशन होता है इनका। तो अगर हम I मिनिमम एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखेंगे तो वो K A1 माइनस A2 होल स्क्वायर होगा। लेकिन कब? जब हम यहाँ इसको नेगेटिव ऑलरेडी ले रहे हैं तो मिनिमा हम लिख रहे हैं। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखें देन इट विल बी लाइक दिस, clear, or it will be like this if I write the I maximum or I minimum in terms of amplitude, and if I write in terms of intensities itself, then the expressions are this way. Clear? So these are the cases where we get the constructive and destructive interference. So take the screenshot. If we divide this I max and I minimum, I max upon I minimum in terms of the amplitudes, okay, so it will be what? It is K A1 plus A2 whole square divided by K A1 minus A2 whole square. So look here, K and K will cancel out, K and K will cancel out, and we get A1 minus A1 plus A2. इसमें भी मैं क्या करूँगा? देखो A1 A2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो A2 को जब हम कॉमन लेंगे then it will be A2 square 1 A1 upon A2 plus 1 whole square divided by A2 square, क्योंकि स्क्वायर से वो कॉमन लिया जा रहा है इसलिए स्क्वायर होगा बाहर आके, and it will be A1 upon A2 minus 1 whole square. So A2 square will again cancel out, and we say A1 upon A2 is equals to small r, that is called amplitudes ratio. तो अगर हम A1 upon A2 को amplitudes ratio कहें तो I max upon I minimum will be equals to R plus 1 upon R minus 1 whole square. Okay, where R is what? R is A1 upon A2 and it is called amplitude ratio. Amplitude ratio. Here A1 upon A2 को हम amplitude ratio कहेंगे, और ये R की टर्म में इस तरह से गिवन होगा। तो हमने यहाँ इंटेंसिटीज का रेशियो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो कंसीडर कैलकुलेट किया। एक रेशियो हम बता सकते हैं I1 I2 की टर्म में, जो अभी हमने डेरिवेशन किया था, दैट इज रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। ओके, so this is also one of the ratio of intensities maxima and minima in terms of the intensity of first and second waves जो वहां से इमिट हो रही है, और ये एम्पलीट्यूड्स की टर्म में ये रेशियो है। One more thing, if we say that W1 and W2 are the width of the slits S1 and S2 respectively, तो स्लिट की जो विड्थ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं बात कर रहा हूँ, जितनी ज्यादा स्लिट की विड्थ होगी उतनी ज्यादा उससे पास होने वाली इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। जो इंटेंसिटी है वो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस टर्म में भी हम यहाँ अगर रिलेशन लिखते हैं कि वो रिलेशन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इफ W1 एंड W2, एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना इंटेंसिटी वाइज न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, इफ W1 एंड W2 आर विड्थ ऑफ स्लिट S1 and S2 respectively, then I1 is proportional to W1 and I2 is proportional to W2। यानी फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी है वो W1 के प्रोपोर्शनल और सेकेंड वेव की जो इंटेंसिटी है वो W2 के प्रोपोर्शनल। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो अगर हम लिखें
तो इट विल बी व्हाट, इट इज W1 अपॉन W2, यही होगा ना। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा लाइक K डैश, दैट विल बी कैंसिल आउट व्हेन वी टेक द रेशियो। And if I write I1 and I2 in terms of amplitude, तो it will be A1 upon A2, और वो भी स्क्वायर में, A1 स्क्वायर अपॉन, जिसको हम R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि I क्या होता है, I1 is K A1 स्क्वायर और I2 is K A2 स्क्वायर, so it will be what, it is R स्क्वायर। so width की टर्म में भी कई बार हमें न्यूमेरिकल मिल सकता है कि स्लिट विड्थ अगर इतनी है तो इंटेंसिटीज क्या होंगी, या एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होगा, या एम्पलीट्यूड क्या होगा। ये जितने भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखे हैं, आई मैक्स इन टर्म्स ऑफ 4I1 हो, या आई मिनिमम 0 हो, या आई मैक्स का ये फॉर्मूला, आई मिनिमम का ये फॉर्मूला, फिर इनका रेशियो एम्पलीट्यूड की टर्म्स में, तो ये सारे रिलेशंस एक साथ ध्यान रखना कि मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटीज के क्या क्या रेशियोज होते हैं। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट।